Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Muchi from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter Diversity in Living Organisms, and in this chapter today my topic to discuss is Kingdom Monera. Kingdom Monera पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में. It is the lecture included in the syllabus unit 3rd. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इस चैप्टर ये बहुत लंबा चैप्टर है. इस पे हम अभी चल रहे हैं. जितना ये कंप्लीट होगा तो उतना उसका एग्जाम भी होगा. तो यहाँ हम किंगडम मोनीरा की बात हम कर देंगे. किंगडम मोनीरा जो है, किंगडम मोनीरा में प्रोकैरियोटे आते हैं. प्रोकैरियोटे आते हैं. These prokaryote are made up of prokaryotic cells. Prokaryotic cells. You know the prokaryotic cells. और इस किंगडम मोनीरा जो है, इसमें all bacteria includes in this kingdom monera. किंगडम मोनीरा के सब किंगडम्स आते हैं एज पर द विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. उसमें फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनीरा. किंगडम मोनीरा में ऑल बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं. दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. देयरफॉर सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज प्रोकैरियोटे. तो ये किंगडम मोनीरा 2 सब किंगडम्स में डिवाइड हुआ है. 2 सब किंगडम्स divided into 2 sub kingdoms. One is the archaebacteria. ध्यान दीजिए, archaebacteria. Then second is the eubacteria. ये कहां से निकले? ये इसी किंगडम से निकले हैं. 2 सब किंगडम्स, आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. जो आर्केबैक्टीरिया है, सच बैक्टीरिया आल्सो नोन एज द एंशिएंट बैक्टीरिया. ये बहुत पुराने बैक्टीरिया है. दे आर फर्स्ट इवॉल्व्ड बैक्टीरिया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. एंशिएंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया. एंड देन यूबैक्टीरिया. such bacteria are known as the true bacteria. They are actually the bacteria, or simply the such group is also known as the, simply you call them bacteria. तो जो यू बैक्टीरिया है, as per the climatic condition where they survive, archaebacteria are further classified them. Some are the methanogenous. Some bacteria, archaebacteria, are known as per the environment wherein they survive. जिस वातावरण में वो रहते हैं, जिन कंडीशंस में वो रहते हैं, वो कंडीशंस, वो सराउंडिंग्स बहुत ही हार्श, एक्सट्रीमली ड्रास्टिक क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं जहां पे सर्वाइवल होते हैं. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द आर्केबैक्टीरिया ग्रुप में आता है मिथेनोजिनस. सेकंड इज द thermoacidophilus. Some archaebacteria are thermoacidophilus. Third is the Haliophilus. तो ये जो मेथेनोजिनस बैक्टीरिया जो है, ये उन वातावरण में, आपको पता है, स्वैम्पी water logging areas, swampy and marsh areas में, marshy areas में पाए जाते हैं, जहां पे डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक वेस्ट. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट्स. ये एरियाज मॉइस्चर रहते हैं and dead and decayed
ऑर्गेनिक मैटर भी वहां होता है, और ये बैक्टीरिया वहां सर्वाइवल होते हैं इस वातावरण में। किस वातावरण में ये मेथोजेनस होते हैं? Such methogens are found in swampy and marshy areas where there is organic dampened, हम कहेंगे dampened organic wastes. The area is moist and there is a decomposition of such organic matters by such type of bacteria methanogenes. Methanogenes से नाम पता चलता है, they give the production of in such areas. Such areas are rich source of methane gas. Such areas are rich source of methane gas, CH4 gas. Therefore, methane gas आपको नाम सुना होगा, marshy. They are also sometimes they are known as the marshy gas. Production goes with the help of the methogens. They found in such type of environment, they give the production of methane gas. Methane gas is just therefore organic gas which is evolved by the activities performing by the methogens in those areas. Such areas are very critical, we can say very harsh to survival. Such type of archaebacteria like the methanogenes, तभी तो they give the production of methane. Therefore such bacteria are known as the methanogenes. इनका जो तादाद है archaebacteria, ये अभी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत ही कम तादाद में पाए जाते हैं, बहुत ही कम तादाद में मगर है। तो इन जगहों पे जहां लाइफ सर्वाइव पॉसिबल नहीं है, वहां उस एनवायरमेंट, उस सराउंडिंग में ये अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। वो दीज आर अबाउट द methanogenes which are the archaebacteria, ancient type of these are the first evolved bacteria on the surface of the earth, and also the prokaryotic. Then there is the acidophilus. Such bacteria, acidophilus bacteria here, thermoacidophilus bacteria, or some archaebacteria are the acidophilus bacteria. Some archaebacteria are acidophilus bacteria. Those are such, they are found in such environment where there is the hot climatic condition. Environment is hot, climatic condition is there. Temperature is high, like I think that there could be 70 degrees Celsius temperature approximately there in the surrounding, and they make themselves possible survive. Thermo, तभी तो इनका नाम है thermo, means temperature is high. They are heat bearing or bacteria. And acids, and the medium there is, the medium where they survive, medium is acidic. तो ये उस वातावरण में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जहां पे हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर हाई है, approximately 70 degrees Celsius, and medium is acidic. Therefore, such type of bacteria which survive in such extremely critical, we can say harsh climatic condition, such bacteria are found, known as the thermoacidophilus. Thermoacidophilus are the bacteria which are found in hot climatic condition, and the medium is acidic. Thermoacidophilus bacteria it is another category of the archaebacteria. Then there is a Haliophilus. जो हेलियोफाइलस बैक्टीरिया है, दे आर फाउंड इन द सलाइन वाटर, नमकीन पानी में पाए जाते हैं. Such type of archaebacteria are now here. Such type of archaebacteria found in the saline water. हाँ, वहाँ पे dissolved salt होता है, वहाँ ये अपना dissolved salt होता है उस पानी में, वहाँ ये सर्वाइवल कर पाते हैं. तो such type of वो हम कहेंगे अगर मिथेनोजेनस, थर्मोएसिडोफाइलस या हेलियोफाइलस जो बैक्टीरिया है, they are collectively known as archaebacteria, and their survival is very extreme, and they survive themselves in harsh climatic conditions.
आर्के बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जिनको हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप किंगडम मोनिरा में ज्यादा ध्यान आपको देना यू बैक्टीरिया, दोज आर नेम्ड एज ट्रू बैक्टीरिया और वी सिंपली कॉल देम बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया, दीज डेज दे आर सर्वाइवल इन नेचर एंड आर्के बैक्टीरिया के मुताबिक सम आर द आर्के बैक्टीरिया, इनके बारे में बताता हूँ। They are photosynthetic in nature, photosynthetic in nature as they contains the chlorophyll in the body, in their bodies, chlorophylls, and they make the utilization of some inorganic chemical substances, inorganic chemical substances used as सबस्ट्रेट। जिस तरह प्लांट्स यूज करते कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस, यही ये लोग भी कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस सबस्ट्रेट TRAT सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं, जिनसे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एंड chlorophyll is in their body with the help of sunlight and the use of some inorganic chemical substance like the nitrite, जिस तरह nitrite, nitrate, hydrogen sulfide, they use hydrogen sulfide, they use the sulfur as the substrate in order in the manufacture। जिस तरह plants कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इस्तेमाल करते हैं, of course they use the water in the manufacturing। और such आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं या हम कहेंगे बैक्टीरिया, they shows the chemoautotrophic mode of chemoautotrophs, they are known as the chemoautotrophs। They also show the photosynthesis, that means they contain chemoautotrophic, sometimes in their body contain the chlorophyll। With the help of that they are photosynthetic in nature, with the help of the sunlight, water available, inorganic chemical substances को इस्तेमाल करके अपना ग़िज़ा खुद बना लेते हैं। Such archaea bacteria are most primitive bacteria and prove themselves the autotrophs, self-manufacturing food on the surface of earth when there is the origin of the life। archaea bacteria first evolved as most primitive organisms on the surface of the earth। हम ज्यादा किंगडम मोनिरा में हम ज्यादा ध्यान देंगे, दे आर द रेयर केसेस एंड फ्यू एग्जांपल्स इन आर्के बैक्टीरिया, ज्यादा हम ध्यान देंगे यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया, सिंपली यू कॉल देम द बैक्टीरिया आर already I told you they are made of prokaryotic cell। prokaryotic cell में क्या होता है, this cell is the simple, they are made of simple cell। इसमें जो organelles होते हैं, cell organelles जो होते हैं, not membrane bounded, there is the we can say nuclear material freely available in cytoplasm, freely available in cytoplasm। बैक्टीरिया के बारे में सारा कुछ मैं बता रहा हूं। इनका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, what they are made of prokaryotic cell, yes। and the prokaryotic cell में क्या देखते हैं, this is a simple type of cell। organelle जो होते हैं not properly membrane bounded होते हैं। nuclear material जो होता है उसमें freely available in cytoplasm, और उस nuclear material को हम कहते हैं nucleoid, that is। and there is the free ribosomes, 70S ribosomes सब यूनिट से बना हुआ होता है। and there is the extra circular
डीएनए जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। शाबाश, प्लाज्मिड। हाँ, तो ये आपने ऑलरेडी में पढ़ा है यूकैरियोटिक सेल किसमें, इन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पहला चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी है आपने। और हमने क्या देखा, देयर इज अ इनर, इन द बैक्टीरियल सेल देयर इज अ इनर फोल्डेड membrane, there is the inner folded membrane known as the mesosomes. Then there is also there is attached ribosomes to the plasma membrane. ये और भी इसमें जो हम इसमें देखते हैं, on there is a, in the cell there is a cell wall, there is a cell membrane. In the bacteria is externally covered by the cell wall, cell membrane, and most externally it is covered with capsule, which gives it is resistance. The capsule gives us, मैं लिखूंगा इसको रेड मार्कर से यहाँ पे, capsule is the capsule is the outermost covering in a bacteria which protect them by the harsh climatic conditions से बचाता है, the capsule. And besides the capsule there is cell wall, then there is plasma membrane or cell membrane, which covers externally the cell, and internal organelles are protected. Cytoplasm भी पाया जाता है, granular cytoplasm are found in the bacterial cell. And then for the locomotion you might have seen the bacterial cell have flagella or cilia for the locomotion purpose and food catching purpose, gripping. Sometimes they gripping, there is a gripping to the substratum के साथ grip करने के लिए they work. Flagella and cilia they bear on the surface. तो बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरियल सेल के बारे में बात सारी चल रही है, बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बताएंगे, they comes of different shapes. They are of coccus shape या coccus shape, bacillus form, rod shaped, bacillus form, spirillum form, twisted form. They are formed in the vibrio shape. They are of following shapes. Coccus means they are rounded in shape. Bacillus means they are of rod shaped. Spiral means they are of twisted in shape, and vibrio means they are comma in shape. Also, these bacteria comes in the zigzag, that is the, we can say, spirochete form. You can say the spirochete form. That means zigzag in form, zigzag in shape. Following or the shapes of the bacteria comes of following shapes. तो ये था इतना। और इसमें अगर हम बात कर लेंगे यू बैक्टीरिया विच आर नोन एज द बैक्टीरिया, मैंने पहले ही बताया आपको, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया ग्राहम स्टेनिंग के बदौलत से हम इनको कैटेगोराइज करते हैं बैक्टीरिया के। ग्राहम स्टेनिंग के बिना पे हम इनको कैटेगोराइज, वन इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, other are the shabash gram negative bacteria,
जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो डाई लगती है और ये वो डाई नहीं लेते, डाई मीन स्टेन, दे रिटेन द स्टेनिंग, दे डिड नॉट रिटेन डोंट रिटेन द स्टेनिंग। इन बिना पे हमने बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया है, सम बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सम आर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनको हमने असल में क्या होता है, इनका जो सेल वॉल बना होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है उसकी ये प्रॉपर्टीज होती है सेल वॉल के बिना पे। दे आर मेड अप ऑफ पेप्टिडो, अनोखा जैसे सेल वॉल का बना हुआ ये मेटेरियल, पेप्टिडो ग्लाइकन, ग्लाइकन मेटीरियल, ग्लाइकन, ग्लाइकोजन, पेप्टिडोग्लाइकोजन से बना हुआ होता है, शॉर्ट चेन्स ऑफ पेप्टाइड्स एंड द पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोजन जो है पेप्टिडो प्रोटीन्स प्ले, दैट मीन्स देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द शॉर्ट चेन ऑफ प्रोटीन्स प्लस द सैकराइड, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। इनसे बना होता है, जिसके वजह से अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात हम कर लेंगे, इनमें एक एक्सटर्नल लेयर होती है, इनमें भी होती है पेप्टिडो ग्लाइकोगन पेप्टिडो ग्लाइको, इनमें भी ये लेयर होती है, मगर इनमें लाइपो लिपिड लेयर होता है, लाइपो पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर होते हैं। इनमें पेप्टिडो लाइपो लिपिड लेयर, एक्स्ट्रा लिपिड लेयर। अब मान लीजिए अगर ये बैक्टीरियल सेल है, ग्लाइकोजन हम कहेंगे, अगर हम देखेंगे ये बैक्टीरियल सेल है, मान लीजिए ऊपर दिखाते हुए बैक्टीरियल सेल है इसका, ये तो हम देखेंगे ये जो है इसका ये लेयर जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, जिसके वजह से दे टेक द ग्राम स्टेन, इसके वजह से देयर इज अ ग्राम स्टेनिंग, इनको रंग डाई लगती है, ग्राम स्टेन रेड कलर की डाई लगती है इनको। तो ये हमने देखा है पॉजिटिव बैक्टीरिया में, बट दिस लेयर इज एक्सटर्नली कंसिस्ट ऑफ लिपिड लेयर। तो इसके बावजूद दिस लेयर इज, जिसके वजह से ये स्टेन नहीं लगता है, कौन सी स्टेन नहीं लगता है, जिसके वजह से ग्राम स्टेन ये नहीं ले पाते हैं, तो नेगेटिव टेस्ट दिखाता है। बैक्टीरिया व्हेन दे हैव द प्रेजेंस ऑफ लिपिड लेयर, लाइपोलिपिड, दे एक्सटर्नली फाउंड द लिपिड लेयर, जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया, यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाया। तो ये खासियत है किनकी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया को हमने ग्राम स्टेनिंग के बिना पे हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट एक चीज रिसर्च हुई है, जिनकी वजह से हमने बहुत सारे एंटीबॉडीज को क्लासिफाई किया है। एंटीबॉडीज और साइड ड्रग्स विच आर यूज्ड अप इन ऑर्डर टू किल द अदर ग्रेड ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात हम कर लेंगे, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया आर ऑफ फोटोसिंथेटिक इन नेचर, फोटोसिंथेटिक इन नेचर, सारे नहीं है, हाँ, उनमें से इन द फोटो दे शो द ऑक्सीडेशन दैट मीन्स यूटिलाइजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ताकि हम उनको कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक इन नेचर में क्या होता है, वो खुद फूड को सिंथेसाइज करते हैं
मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, दे यूज द हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वाटर in the presence of the sunlight and they form the C6H12O6 है ना, ये photosynthetic go in aspect of the we can say, sorry, here not hydrogen sulfide, they take the carbon dioxide and hydrogen sulfide gas, they use it up in the manufacturing of and they give us the release of the oxygen gas here. हाँ, तो फोटो कुछ बैक्टीरिया में है, इसमें फोटोसिंथेसिस में कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में उनमें क्या होता है, उनमें दे डोंट यूज द सन's एनर्जी, द एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ, उनसे जो एनर्जी रिलीज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाँ, सल्फाइड, जब ये चीजें क्या होती है ऑक्सीडाइज होती है तब उनमें वो एनर्जी रिलीज होती है। वो बाय द केमिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शो द वेरियस केमिकल रिएक्शन जिनसे एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ देखो ऑक्सीडाइजिंग फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, द बैक्टीरिया जो है दे टेक द यूटिलाइज दिस सब्सटेंस एंड दे यूटिलाइज द डायरेक्टली सनलाइट एंड दे हैव प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे इनमें भी क्लोरोफिल होता है, याद रखिए इनमें भी क्लोरोफिल होता है एंड they don't take the sunlight. In respect of the sunlight, they show the number of chemical reactions like the oxidation of iron, sulfur, nitrogen sulfide. फिर आखिरकार क्या एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी जो रिलीज होती है यूज्ड अप इन द सिंथेसिस ऑफ द फूड। तो ये किस में हम देखते हैं, ये देखते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर वेरी कॉमन एज द प्लांटस, but the chemoautotrophic bacteria are somewhat different. Such bacteria are help in the nitrogen cycle, carbon cycle, phosphorus cycle में इस्तेमाल होते हैं। या such usually ये जो chemoautotrophic bacteria होते हैं ये anaerobic in nature होते हैं, anaerobic in nature, that means they survive without the oxygen, ऑक्सीजन प्रेजेंस के बगैर भी ये सर्वाइवल कर पाते। वो बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया और एरोबस, सम और एनारोबस। एरोबस क्या होते हैं बैक्टीरिया एरोबस, दैट मीन दे फॉर देयर सर्वाइवल दे यूज्ड अप देयर ऑक्सीजन, जिस तरह हमें ऑक्सीजन की जरूरत होता है सर्वाइवल होने के लिए, इसी तरह वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेते हैं सर्वाइवल के लिए, तो उनको हम कहते हैं एरोबस बैक्टीरिया। एंड सम बैक्टीरिया एनारोबस, those bacteria we don't take the oxygen for their survival, those are known as anaerobes. So bacteria can of two types here, I will write it also on the board here. Some bacteria are here, the bacteria are aerobes, aerobes bacteria, they need the oxygen gas here. Some bacteria are anaerobes and aerobes bacteria, they don't need atmospheric oxygen for their survival. So such bacteria shows the aerobic type of respiration. Shabash, aerobic respiration, yes, such bacteria shows the anaerobic type of respiration. Such bacteria shows the anaerobic type of respiration. This is all about the kingdom Monera. और किंगडम मोनिरा में हम और एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यू बैक्टीरिया, दैट मीन द बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो अभी हमने यही यू बैक्टीरिया, इन्हीं को कहते हैं हम क्या बात बैक्टीरिया। अगर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, हाउ दे रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस देखें इनमें, दे रिप्रोड्यूस अप टू द वन इज द asexually they reproduce and sexually also they reproduce. Asexually there is a binary fission, yes,
Asexually, they reproduce by multiple fission. Asexually, they reproduce by spore formation. Spore formation. Sexually, they reproduce by specific type of method, conjugation, जिसमें दो बैक्टीरियल सेल आपस में डेवलप करते हैं एक ट्यूब, जिनसे वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो पास करते हैं. दिस स्ट्रक्चर विच इज वेरी कॉमन टू बैक्टीरिया ए and bacteria B, it is known as a pilus. Pilus is a tubular-like structure which helps in passing the genetic material. One is the donor, जो देता है. Another is the recipient. Recipient. वो लेता है. The donor होता है. यहाँ एक फीमेल एक्ट करता है, दूसरा मेल एक्ट करता है. स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेथड को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, जिसमें दो बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक स्ट्रक्चर से, फाइलस से. जिस तरह ये अपना जेनेटिक मटेरियल पास करते हैं. आफ्टर जेनेटिक मटेरियल पास, ये इस चीज को फिर फोटोकॉपी अपनी बॉडी के अंदर कराते हैं एंड देन दे फॉर्म द मल्टीपल कॉपीज. तो इस मेथड को हम हायर क्लास में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे. कॉन्जुगेशन मेथड इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन अ बैक्टीरिया. तो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑल्सो सेक्सुअली, बट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज asexual, binary fission, multiple fission, spore formation. I hope you understand about the kingdom Monera. Thank you.